A very good morning to you all, kids. And after the long break of the regular routine during to your exams, we are back with the chapters and the studies again. I know it was not a break for you people because you all were very much busy in going through your studies and your chapters and your everyday routine. But it's all now. We have to move on. The exams are over now, and I hope that you have done your best because the marks are going to be counted. तो आपके लिए एक एक मार्क्स बहुत important है. So, and as I have already so many times repeated that you have to be in practice of writing. लिखना बहुत ज़रूरी है. डोंट एवर थिंक कि ये जो एग्ज़ाम जिस प्रोसेस में हो रहा है ऐसे ही होता रहेगा. यू विल नेवर be asked to write the exams. Very soon you have to write the exams. So be in practice of writing and complete your copies. Okay? So this is the next chapter of your history. We have to move on. हम लोगों को finish करना है. And again we will just revise all the chapters from chapter 1, but let us first move on and complete all the syllabus. So this is the 7th chapter. अभी तक हम लोग जितने भी chapters हम लोगों ने किए हैं, they all were related with the ones who intruded, who attacked, और जिनसे हम लोग सफ़र कर रहे थे. वी वर सफरिंग द बेसिक, द मेन रियल इनहेबिटेंट्स वर सफरिंग, एंड वी वर जस्ट गोइंग थ्रू द luxurious life and the extravagant presentation of the rulers and the king of that time who ruled over us for their own self only, for the expansion of their empire only. अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते आए हैं हिस्ट्री में कि कब कब कौन कौन यहाँ आए और हम लोगों के ऊपर अटैक किया और कितने से कितने दिनों तक यहाँ रूल किया. They were not the real ones who were originated in our country. They came just from all over the neighboring places and stay here, ruled over us, suppressed us for their own expansion of the territory. Okay, but in this chapter we have to know something more about our own tribal groups, जो हमारे यहाँ के मेन इनहेबिटेंट्स थे, जो यहाँ के रहने वाले सही वासी थे. हम लोगों को उनके बारे में कुछ ब्रीफली इंट्रोडक्शंस इस चैप्टर में दिए गए हैं. सो वी हैव टू गो थ्रू दैट, बट बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बेसिक चेंजेस एंड द सोसाइटी ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड. जो तुर्क, मंगोल, अफ़गान्स, इन लोगों के शासनकाल में किस तरह की सोसाइटी थी और किस तरह के चेंजेस आए हमारी सोसाइटी में. जस्ट ब्रीफली वी विल गो थ्रू दैट. वी हैव लर्नड ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस चैप्टर्स, बट लेट अस ब्रीफली रिकॉल देम. ओके, सो एज वी नो दैट द Turks, Afghans, Mongols, they all came here and stayed here for such a long time. तो जब ज़्यादा दिनों तक कोई टिक जाता है, कोई रह जाता है, तो obviously they leave their impact on the traditions, their culture and the customs and the value systems also. So that exactly happened with our country also. The customs and the values and the traditions which were followed by these intruders were very much different from the customs and practices which were prevalent here only. जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे इंडिया में एट दैट टाइम, उससे उन लोगों के कस्टम्स बहुत अलग थे. कहीं भी किसी भी तरह का कोई मैच नहीं था इनमें. सो व्हेन दे केम हियर एंड मर्ज्ड विद द प्रैक्टिसेस विच वर एग्जिस्टिंग हियर, तो उससे बहुत तरह के चेंजेस आए. ठीक है, जब आप कहीं किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, काफ़ी दिनों तक उनके साथ रहते हैं, या किसी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा अगर होता है, तो ऑब्वियसली आपकी कुछ बातें वो लेंगे और उनकी कुछ बातें आप ले लेते हैं. सो this was like that only. They ruled over here and stayed here for a very long time. So that left an impact on the existing traditions of our culture and our systems. बहुत तरह के सोशल क्लासेस इमर्ज हुए, कास्ट इमर्ज हुए, विमेन के पोजीशन में बहुत तरह के चेंजेस आए, और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनमें भी चेंजेस आए. दे वर द बेसिक वंस जो यहाँ काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से रह रहे थे, पर उनके भी रहन सहन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए. सो
सबसे पहले एट दैट टाइम वी नो दैट द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू द कास्ट. मेन जो 4 कास्ट थे दैट दे वर द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियाज, द वैश्याज एंड द शूद्राज. ब्राह्मणाज वर द डोमिनेंट वंस, वो ही डोमिनेट करते थे क्योंकि यज्ञ, हवन, पूजा पाठ ये सब कुछ उनकी जिम्मेदारी थी. दे वर नोन टू बी द ones who interpreted the Vedas and all the ग्रंथ जितने भी उस समय थे वो सब उन्हीं लोगों को सारी जानकारी थी. तो उन लोगों ने कभी किसी और को इसके बारे में जानकारी होने भी नहीं दी. दे नेवर वांटेड द अदर्स टू बी एजुकेटेड एंड कम in just their level and be any kind of competition to them. They were the ones who dominated everything. वो manipulate करते थे चीज़ों को अपनी तरह से because they knew that even the king and the rulers will do what they want. Okay, so they were the most powerful ones. Then the Kshatriyas were there. They were the warrior ones. वो उनकी ड्यूटी थी कि अपने बाउंड्रीज़ की, अपने रीजन की, अपने किंग की और सिटीजन्स की रक्षा करें, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखें. देन द वैश्याज, दे वर द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स. दे वर मोस्टली busy with their economic activities. And then the shudras, they were supposed to serve these three. Okay, the brahmanas, the kshatriyas and the वैश्यास. शूद्रास का काम इन लोगों को सर्व करना होता था एंड दे वर वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑल काइंड ऑफ menial jobs. Then if we talk about the position of women, that very much declined during that time, or so many evil practices were there. Okay, like the sati pratha, jauhar pratha, चाइल्ड मैरिज वॉज देयर. बहुत कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी. सती प्रथा में जो विडो होती थी, जिनके जो वाइफ थी, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उन्हें भी उनके साथ ज़िंदा जलना होता था. वो एक प्रथा थी, वो करना ही था. दैट वाज वेरी मच रिजिडली फॉलोड. एंड देन द जौहर प्रथा, जब वॉर होते थे दो लोगों के बीच और जो जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि वो जीतेंगे, ठीक है, जो हारने वाले होते थे, जो किंग होते थे, उनके किले में जितने लोग होते थे या उनके एरिया में जितनी भी विमेन होती थी, जो रानियां होती थी, उन्हें जब मालूम होता था कि अब हमारे जीतने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शंस, तो वो शत्रुओं के हाथ में जाने से बेहतर अपने आप को ख़त्म करना समझते थे. सो दे प्रैक्टिस द सेल्फ इमोलेशन. ओके, अपने आप को ख़त्म कर लेना और एक साथ जितनी भी विमेन होती थी, रानियाँ होती थी, दे प्रैक्टिस दैट. सो दैट वाज द जौहर प्रथा एंड इट वाज रियली वेरी मच पेनफुल. बट उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता था कि हम लोगों ने अपने आप को दुश्मन के हाथ में नहीं जाने दिया ताकि वो किसी भी तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार कर सके. ओके, सो दीज वर द प्रैक्टिसेस विच वर वेरी मच कॉमन एट दैट टाइम. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द सल्तनत पीरियड, तो सल्तनत पीरियड में बहुत ज़्यादा जो कास्ट था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनेंट कम्युनिटीज़, द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़. मुस्लिम और हिंदू में सोसाइटी पूरी तरह से डिवाइडेड थी एंड द कास्ट सिस्टम वाज वेरी रिजिडली फॉलोड. बहुत ही रिजिड थे रूल्स जो भी थे कास्ट सिस्टम के. और बेसिकली दैट वाज वेरी मच फोर्स्ड ऑन फॉर द मैरिजेस एंड द सोशलाइजिंग. शादियाँ बिल्कुल नहीं हो सकती थी और सोशलाइजिंग भी, कि आप ना तो उनके साथ उठना बैठना मिलना जुलना किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं रखना था. एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से सोशलाइज करना बहुत ही ज़्यादा मना था. इट वॉज़ वेरी रिजिडली फॉलोड. देन द पर्दा सिस्टम वॉज देयर. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट कि विमेन पोजीशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया था उस समय. औरतों को हमेशा पर्दा में रहने की सलाह दी जाती थी. पर्दा मीन्स कि हमेशा ढक के रहना, किसी और के सामने नहीं जाना, अंदर रहना, बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगाए जाते थे. ओके, और दैट वाज वेरी वाइडली प्रेवेलेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. सो दिस वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन विच वाज नॉट वेरी गुड एनफ. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द साउथ इंडिया, ये तो था ही हर जगह कि विमेन को पर्दा में रहना है और बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना, किसी और के सामने नहीं आना, कोई उन्हें देख न ले. बट इफ़ वी टॉक अबाउट साउथ इंडिया, साउथ में विमेन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी एट दैट टाइम ऑल्सो. दे वर वेरी मच एजुकेटेड इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग. इवन हर तरह की लर्निंग में
साउथ इंडिया में हमेशा विमेन बहुत आगे रहीं, तो उस समय उन जगहों पे उतना ज़्यादा असर मुगल्स का और तुर्क्स और अफ़गान्स का नहीं रहा. साउथ वॉज ऑलवेज वेरी रिच एंड very much different from all the other parts of the country. Okay, and if we talk about the Mughal period, मुग़ल समय में जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा जो रूलिंग क्लास था और जो नोबिलिटी या जो ऑफिशियल्स थे जो मुग़ल दरबार में थे, दे enjoyed a very privileged position and led very luxurious lives. लेकिन जो विमेन का पोजीशन था वो उस समय भी बहुत अच्छा नहीं था, एंड दे कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम द सोशल लेवल्स. ओके, सो दिस वाज द सोसाइटी एंड द पोजीशन ऑफ डिफरेंट क्लास of during the different period, the Sultanate period, the Mughals period, and the different rulers at that time who ruled over us, and how the changes were there after the interference of the others and the increasing communication. Okay, so this was the society, and now what basically we have to talk about in this chapter is about our own tribal groups. हमारे आदिवासी लोग जो यहाँ के मेन inhabitants थे, they were the ones who were very powerful one. बहुत ही glorious past है उनका, बहुत ही ज़्यादा powerful थे वो लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है. हम लोग सिर्फ मिडिएवल पीरियड्स और जो दूसरे हमारे इन्वेडर्स थे उनके ही पास्ट को और उनकी ग्लोरीज़ को और भी ज़्यादा पढ़ते चले जाते हैं. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम इन दिस चैप्टर. द ट्राइब दैट इज़ बेसिकली अ सोशल ग्रुप. ठीक है, ट्राइब एक बेसिकली ऐसा सोशल ग्रुप होता है जो डेवलपमेंट से बहुत बात जिनसे विकसित बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं माना जाता, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू लीव वेरी लग्जरियंट लाइफ. बहुत शो ऑफ नहीं होता, उन बहुत ही साधारण लोग होते हैं, बहुत ही आम जिंदगी जीते हैं. एंड द स्कॉलर्स हैव यूज द टर्म द tribe for them to signify an ethnic group that was not organized around the urban cities. ठीक है, वैसा सोशल ग्रुप जो शहरी इलाकों के आसपास नहीं था, उनसे बहुत दूर सरवाइव करता था, उनसे बहुत दूर सेटल्ड होता था. ओके, जो जिन्हें बहुत ज़्यादा विकसित नहीं माना जाता था, दे वर नॉट वेरी मच डेवलप्ड. वो फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करते थे. बेसिकली दे वर नोमैड्स. वो यहाँ वहाँ घूमना, हंटिंग करना, क्रॉपिंग ऑल्सो दे यूज टू डू, बट दे वर वेरी मच अवे फ्रॉम ऑल द डेवलपमेंट वर्क्स. और उन्हें बाहर की जो दुनिया थी उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता था. ओके, दे जस्ट वर द ग्रुप्स दैट वर ऑर्गेनाइज्ड नॉट ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द अर्बन सिटीज़. ओके, इसीलिए बहुत ज़्यादा उनके बारे में बातें नहीं होती हैं. बट इन दिस चैप्टर, इन द कमिंग वीडियोज़, वी विल डिस्कस अबाउट देम ब्रीफली. एंड टू मेन ट्राइबल ग्रुप्स, द गोंड्स एंड द अहोम्स, वी विल डिस्कस अबाउट देम इन द कमिंग वीडियोज़. एंड यू हैव टू लर्न अबाउट देम. आप उनके बारे में पढ़ के रखिए. यू गो थ्रू द चैप्टर. इस चैप्टर में ब्रीफली उनके बारे में बताया गया है. So you read them and we will discuss about them. Okay, thank you.